Hello students, how are you? Enjoying life? I'm very keen to meet you people in the class, in the live class. That is offline class. But we'll have to live with Corona. We cannot get rid of Corona. I don't know when we'll get the relief from this Corona issue. May take a month, 2 months or something more than that, sometime more than that. But we'll have to live with it. Learn to live with Corona. Living with Corona means take all the precautionary measures but don't panic. Remain at home, stay at home. Personal and community sanitization, that is necessary. Don't go out. But don't panic. Don't panic from Corona. Don't make it an excuse कि Corona है, घर में बैठे हैं, डर लग रहा है, पढ़ना नहीं है. No. Time is passing by. Keep on studying. Relax. See the movies. Study. Relax. Do some exercise. Maybe it may be possible that we may have to live with Corona for years together now. Pandemics do not. H1N1 is still there in India. Pandemics do not end. It takes a lot of time for a pandemic to end. And precautions have to be taken, but we'll have to try to live with Corona. You cannot get rid of Corona, you have to live with it. Living it with means don't panic. Don't make Corona excuse कि पढ़ना नहीं है, डर लग रहा है, ये है, वो है. And stay away from these news channels. If you keep on listening to news channel 24 hours a day, and that Corona will actually upset your mind, that will occupy a position in your mind, in your brain, and then you will not be able to do anything. Take it like another disease, like heart attack or dengue or something else. Take it, it's simple, it's going on in the world, it's going on in Delhi also. But take the precautions. Take the precautions. No, there's no harm in taking the precautions, but don't panic. Don't make it an excuse for not studying, okay? So let's start with our topic. We were doing the third colligative property, that is depression in freezing point. We had done the curve for the freezing point and we had arrived at depression in freezing point. Delta TF is equal to KF into M, where M is the molality. M is the molality and KF is the molar depression constant. Molar depression constant. Its value is 1.86 Kelvin kilogram per mole for aqueous solution. What is delta TF? TF naught minus TF, because it is depression. TF naught is the freezing point of pure solvent and TF is the freezing point of the solution when a non-volatile solute has been added to it. Now what was molality? Molality is number of moles of B solute upon weight of solvent into 1000 if it is in grams. Number of moles of solute is what? Mass of solute upon molar mass of solute. You can put in the values to get the depression freezing point. Starting with the numericals, beta. First numerical on this is what mass of ethylene glycol. Ethylene glycol. What is ethylene glycol? CH2, CH2, OH and OH. This is ethylene glycol. Ethane 1,2-diol. Ethane 1,2-diol is ethylene glycol. It is used as an antifreeze. मैंने आपको बताया था कार रेडिएटर्स में डाला जाता है so that the water in the radiator does not freeze even at sub-zero temperatures. Ethylene glycol should be added to 4 kilogram of water in the radiator of a car parked at -6 degrees centigrade, so that the water in the radiator
does not freeze, so that the water in the radiator does not freeze. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब TF नॉट क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज TF हियर? -6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सोल्यूशन का होना चाहिए। हमारे पास KF एक्वा सोल्यूशन के लिए गिवन होगा 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। यूज द फॉर्मूला TF नॉट माइनस TF इज इक्वल टू KF इंटू M। TF नॉट इज 0 माइनस 6 इज इक्वल टू KF 1.86 इंटू what mass of ethylene glycol? Let it be X. What is the molar mass of ethylene glycol? Molar mass इसका होता है बेटा 62। X अपॉन 62 वाटर रेडिएटर में कितना है? 4 किलोग्राम। इसको मैंने 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि ये किलोग्राम्स में है। किस में है बेटा? किलोग्राम्स में है, तो डायरेक्टली मैंने इसे पुट किया। सो यू अराइव एट 6 इज इक्वल टू 1.86 इंटू एक्स अपॉन 62 इंटू 4। एम आई राइट? ये पॉइंट उड़ेगा, नीचे 100 आ जाएगा। 62 3s आर 62 3s आर, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 100 इंटू 4 अपॉन 3x। ये ग्राम्स में आएगा। अब आप कहोगे ये किलोग्राम में, ये तो किलोग्राम में है, लेकिन मोलर मास ग्राम्स में होता है, इसलिए x भी ग्राम्स में आएगा। 3 2s आर, सो x इज इक्वल टू 800 grams. So that means 800 grams of ethylene glycol should be added to 4 kilogram of water in a car radiator such that the water does not freeze even at -6 degrees centigrade. Is that clear? Okay. Now moving on to a bit complex question on depression in freezing point. The radiator of a car contains 1200 grams of ethylene glycol, molar mass 62, in 5 kg of water. Will the water freeze if the car is parked at -10 degrees centigrade? Will any freezing take place if the car is parked at -10 degrees centigrade? Is that clear? Now you will say यहाँ पे TF नॉट गिवन है बेटा, TF नॉट तो 0 डिग्री होता है, KF भी गिवन है, आपको अगर TF भी गिवन है, TF नॉट भी गिवन है, मास ऑफ इथीलिन ग्लाइकोल भी गिवन है, मोलर मास ऑफ इथीलिन ग्लाइकोल भी गिवन है, मोलर मास ऑफ मास ऑफ वाटर भी गिवन है, तो फिर निकालना क्या है? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस अपीयर्ड इन द IRT। अब इसमें निकालना क्या है आपने? अब क्या करना है, इसमें कोई भी एक चीज को x मान लो। आप टेम्परेचर को x मान सकते हैं, TF को -10 की जगह से बाद में कंपेयर कर सकते हैं। अब मास ऑफ इथीलिन ग्लाइकोल को x मान सकते हैं, या मास ऑफ वाटर इन द रेडिएटर को भी x मान सकते हैं। तो मैं पहला केस आपको करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन करने का एक तरीका है कि आप नया TF निकाल लो। क्या निकाल लो? TF। अगर TF आता है -8, इसका मतलब इथीलिन ग्लाइकोल -8 तक बचा पाएगी, -10 पे फ्रीज हो जाएगा पानी। और अगर आता है -12 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आता है, इसका मतलब इतनी इथीलिन ग्लाइकोल -12 डिग्री तक इस पानी को फ्रीज होने से बचा सकती है। इसका मतलब -10 पे कोई फ्रीजिंग नहीं होगी। लेट TF नॉट बी, लेट TF बी x। तो आपने क्या करना है? अब आपने TF नॉट माइनस TF 0 माइनस x इज इक्वल टू KF 1.86 इंटू 1200 grams divided by 62 upon 5. So minus x is equal to 1.86 into 1200 upon 62 into 5. ये पॉइंट उड़ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा।
ठीक है, 100 की ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगी, 62 3 आपके पास माइनस x इज इक्वल टू 36 माइनस x इज इक्वल टू 12 3 36 36 बाय 5 36 बाय 5. So x will minus x will be equal to 7.2 or x will be equal to minus 7.2 degrees centigrade. Now the temperature up to which freezing can be prevented is minus 7.2 और मैंने कार कहाँ पार्क करी है, -10 पे. इसका मतलब इसके अंदर वाटर फ्रीज कर जाएगा क्योंकि माइनस 7.2 से नीचे ये फ्रीजिंग को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा. इज दैट क्लियर? दिस वाज वन थिंग. दिस वाज वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. टेक TF एज x. अगर x -10 से भी नीचे चला जाए इट मीन्स ये इतना इथेनॉल ग्लाइकोल इस पानी को उस टेम्परेचर तक बचा पाएगी. लेकिन क्योंकि ये -7.2 तक बचा पाती है इसलिए ये सफिशिएंट नहीं होगी, इथेनॉल ग्लाइकोल फ्रीजिंग हो जाएगी. अब दूसरे तरीके में इसी क्वेश्चन को अगर आप दूसरे तरीके से करते हैं, प्लीज मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहूँगा. अगर मैं लेट इथिलीन ग्लाइकोल बी एक्स, अब मैं 1200 यूज नहीं करूँगा, इथिलीन ग्लाइकोल यूज करूँगा x. देखिए अब आपके पास क्या हुआ, डेल्टा TF 0 माइनस 10 इज इक्वल टू 1.86 इंटू x अपॉन 62 होल डिवाइड बाई 5. दैट इज 10 इज इक्वल टू 1.86 इंटू x बाय 62 इंटू 5 इंटू 100 आ जाएगा, ये पॉइंट उठ जाएगा, 62 3 आ जाएगा. x इज इक्वल टू 10 इंटू 5 इंटू 100. x will be equal to 10 into 5 into 100 by 3. So x will be equal to 5000 by 3. 1666.6 grams of ethylene glycol. इसका मतलब to prevent the freezing of water, I need this much of ethylene glycol. But ethylene glycol given to me is 1200 grams. That means sufficient amount of ethylene glycol is not present with me to prevent its freezing at -10. So freezing will take place. ये इस तरीके से भी कर सकते हैं. यहाँ पर फ्रीजिंग, उसमें भी फ्रीजिंग होगी, इसमें भी फ्रीजिंग. तीसरे केस में आप वाटर को एक्स ले लो. अगर वाटर यहाँ पे 6 kg आ जाए आंसर, इसका मतलब 6 किलो तो वो भी बचा सकती है तो 5 को बचाएगी. लेकिन आंसर इसमें क्या आएगा, 5 से कम आएगा. इसका मतलब 5 से कम वाटर को ये बचा पाएगी, 5 किलोग्राम वाटर को ये पूरा बचा नहीं पाएगी. सो दिस इज व्हाट द इफेक्ट ऑफ द इथिलीन ग्लाइकोल इज. इज दैट क्लियर? Now moving on to the fourth colligative property. Fourth colligative property is osmotic pressure. Fourth colligative property is osmotic pressure. Osmotic pressure करने से पहले आपको डिफ्यूजन पता होनी चाहिए, ऑस्मोसिस पता होनी चाहिए. डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस पता होना चाहिए. What is diffusion? आपने 9th में किया हुआ है. The migration of the molecules from a region of higher concentration to that of lower concentration. आपने परफ्यूम यहाँ पे स्प्रे किया, थोड़ी देर में वहां पहुंच जाएगा, that is diffusion. Migration of the molecules of a substance from a region of higher concentration to that of lower concentration is called diffusion. ये भी आपने किया था. Migration of the molecule substance into the bulk of the other substance is also called diffusion. Now what is osmosis? This also you have done in class 9th in bio chapter, first chapter biology में. Osmosis क्या होती है? प्लीज ध्यान से देखिएगा. सपोजिंग आपके पास ये एक फनल होती है, इसे थिसल फनल कहते हैं. इसके अंदर आप 5% NaCl सोल्यूशन ले लें. ये एक हाइपरटॉनिक सोल्यूशन है. क्या है बेटा? हाई कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन है. यहां पे वाटर ले लें. ठीक है.
और यहाँ पे होगी एक एसपीएम, क्या होगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेलोफेन हो सकती है, सेलोज मेम्ब्रेन हो सकती है, एग मेम्ब्रेन हो सकती है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन हो सकती है। तो क्या होगा, ये वाटर अंदर को माइग्रेट करेगा थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो दैट मीन्स व्हाट इज ऑस्मोसिस, माइग्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ, हम 9th में पढ़ते थे, हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट। कंसंट्रेशन मोलैरिटी कभी सॉल्वेंट के टर्म्स में नहीं होती, किसकी टर्म्स में होती है बेटा, सोल्यूट की टर्म्स में। जितना सोल्यूट ज़्यादा होगा उतनी कंसंट्रेशन होगी। तो वो डेफिनेशन हम कंप्लीट नहीं थी। तो क्या होगा, फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट इसके अंदर नहीं है या इससे कम होगा, तो लोअर कंसंट्रेशन होगा फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। कभी भी कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट नहीं होती कि पानी ज़्यादा तो कंसंट्रेशन ज़्यादा, नो। कंसंट्रेशन किसके टर्म्स में होगी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो कंसंट्रेशन किसके डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे। तो यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, ये 5% NaCl है, ये वाटर है प्योर, फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू दैट ऑफ हायर कंसंट्रेशन। अब सॉल्वेंट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना। 9th में लिखते थे हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट टू द लोअर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कभी भी सॉल्वेंट की नहीं होती, फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर, मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसंट्रेटेड। समझने की कोशिश करो, जिधर डाइल्यूट है वहां से जाएगा कंसंट्रेटेड की तरफ को थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? सॉरी, माइग्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस from the solvent into the solution, or from a region of lower concentration to that of higher concentration, or from a dilute solution into the concentrated solution through a semi permeable membrane is called osmosis, is called osmosis. तो osmosis समझ लग गई। Then what is the difference between diffusion and osmosis? Differences between डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। एक तरफ डिफ्यूजन लिख लीजिए, एक तरफ ऑस्मोसिस लिखिए। माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन to that of lower concentration। ये क्या है, माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। कई बार टीचर्स आपको कहेंगे कि लोअर टू हायर नहीं, हायर टू लोअर है, तो टीचर को क्या समझाना है कि कंसंट्रेशन कभी सॉल्वेंट के टर्म्स में नहीं होती जो हम हायर से लोअर लिखेंगे, सोल्यूट के टर्म्स में होती है। जहाँ पे सोल्यूट कम होगा उसे लोअर कंसंट्रेशन कहेंगे। लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। देखिए बेटा, डिफ्यूजन किस में होती है, लिक्विड्स में, सॉलिड्स में या गैसेस में? डिफ्यूजन लिक्विड्स में भी होती है, गैसेस में भी होती है और सॉलिड्स में। सो दैट मीन्स डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आल्सो। इट टेक्स प्लेस इन गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। तीनों में होती है। दो गैसेस में फास्टेस्ट होती है, सॉलिड्स में स्लो होती है। इट टेक्स प्लेस ओनली इन लिक्विड्स। तीसरा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में और मे नॉट बी प्रेजेंट। इट मे टेक प्लेस इन द प्रेजेंस और इन द एब्सेंस ऑफ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे एसपीएम जरूरी होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑस्मोसिस टू टेक प्लेस। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। These are the differences between diffusion and osmosis. Diffusion solid, liquid, gases तीनों में होती है, osmosis जो है सिर्फ liquids में होती है। Is that clear? So that is all about the differences between diffusion and osmosis.
Now we are moving on to a few reasoning questions. They are very important. These questions you have done in 9th class also. Why do resins swell when placed in water? Why do resins swell when placed in water? Resins पता बेटा आपको? Resins स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है, RASINS. Resins स्पेल, resins क्या? किशमिश बेटा. इसको वाटर में डालेंगे. What happens in that case? This is the resin. यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे वाटर है बेटा, ये वाटर है, ये एक सेमी परमिएबल कोटिंग है. किसकी? रेजिन की. जैसे इसको रखोगे इसमें वाटर अंदर को माइग्रेट करेगा फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. फिर मैं क्यों बोल रहा हूँ लोअर कंसंट्रेशन? क्योंकि पानी में सोल्यूट नहीं है, अंदर शुगर है, शुगर सोल्यूशन है, अंदर हाइपरटोनिक है सोल्यूशन. बताऊंगा क्या होता है हाइपरटोनिक. तो क्या होगा? माइग्रेट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स विल माइग्रेट इनटू द रेजिन थ्रू द सेमी परमिएबल कोटिंग ऑफ द रेजिन by the process of endosmosis. End means inwards, endosmosis, due to which resins will swell. Now what will be the effect of this temperature on this? अगर आप temperature बढ़ाएंगे, what will happen to the swelling of the resin? It will swell more. Why? Because increase in temperature increases the rate of osmosis. टेम्परेचर बढ़ने से तभी जो हलवे में किशमिश होती है वो बहुत फूली होती है. समटाइम्स इट इज टॉर्न अपार्ट, फट जाती है. क्यों? क्योंकि द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैन नॉट होल्ड सो मच ऑफ वाटर जो कि उसके अंदर माइग्रेट कर चुका होता है. सो दैट इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. नेक्स्ट इज व्हाई डू वी हैव गार्गल्स विद warm saline water in case of sore throat? क्वेश्चन समझ रहे हो बेटा? Why do we have gargles with warm saline water? आजकल तो आप बहुत गागल्स ले रहे होंगे because of that corona effect. Gargles is what do you do in the case of gargles? You take some water, saline water, salt डाल के पानी लेते हैं. And then what do? You take that water inside and then try to retain that water. आप मुंह को ऊपर उठा लेते हैं and then you make those bloody voices. ठीक है? Different types of peculiar types of voices to retain that water in your throat. तो जब भी आपका गला खराब होता है तो आप गर्म पानी में नमक डाल के उसको रिटेन करते हैं. ऊपर की तरफ देखते हैं. ऊपर की तरफ देखने का मतलब यह है कि पानी अंदर ना जाए, पानी थ्रोट में थोड़ी देर के लिए रिटेन रहे. तो क्यों करते हैं ऐसा? प्लीज देखिए ये आपका थ्रोट है. थ्रोट के अंदर जो भी आजकल बात हो रही है म्यूकस मेम्ब्रेन की, कोरोना के इफेक्ट से भी इसको इफेक्ट करती है. इस थ्रोट के अंदर ये एक सेमी परमिएबल म्यूकस मेम्ब्रेन है. जैसे यहाँ पे वार्म सलाइन वाटर आएगा, वार्म सलाइन वाटर. अब ये एक वार्म सलाइन वाटर है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है. ज्यादा कि नहीं? नमक डाला हुआ है. ये थिसल फनल के अंदर वाली बात है. यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है. अब थ्रोट में से जैसे हम इसको रिटेन करेंगे तो थ्रोट में से फ्लूइड्स जो हैं, ये फ्लूइड्स हैं थ्रोट के, वो बाहर को माइग्रेट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोस्मोसिस. बाहर क्यों आए? क्योंकि बाहर वार्म सलाइन वाटर हाई कंसंट्रेशन वाला पानी है. तो जब फ्लूइड्स अंदर से बाहर आएंगे तो इनके साथ माइक्रोब्स भी बाहर आ जाएंगे. जो इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रोब्स हैं वो भी सलाइन वाटर में आएंगे और आप उसके बाद सलाइन वाटर को आप थ्रो आउट करते हैं. मेरी बात समझ लग गई? सो व्हाई डू वी हैव गागल्स इन केस ऑफ सोर थ्रोट विद वार्म सलाइन वाटर? व्हेन यू रिटेन वार्म सलाइन वाटर इन योर थ्रोट, द फ्लूइड्स फ्रॉम द थ्रोट they migrate out through the semi permeable inner coating or lining of the throat into the warm saline water. By the process of exosmosis. With those fluids, the infection causing microbes, they also migrate out. Thus you feel relieved.
इज दैट क्लियर? वार्म वाटर क्यों लेते हैं? बिकॉज इफ इट विल बी नॉट बी वार्म वाटर तो एक्सोस्मोसिस का प्रोसेस जो होगा वो स्लो होगा। एक्सोस्मोसिस का प्रोसेस क्या होगा? वो स्लो होगा। जब वो स्लो होगा तो इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रोब जल्दी बाहर नहीं आएंगे। बहुत गर्म इसलिए नहीं लेते क्योंकि बहुत गर्म लेने से फिर क्या होगा बेटा? फिर वो म्यूकस मेम्ब्रेन ही जल जाएंगे। सो दैट इज व्हाई वी हैव गॉगल्स इन केस ऑफ वार्मथ, इन केस ऑफ सोर थ्रोट। नाउ मूविंग ऑन टू आवर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एज ए होल, ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने ऑस्मोसिस कर ली, डिफ्यूजन कर ली, डिफरेंसेस कर लिए, इनकी थोड़ी सी रीजनिंग भी कर ली, अभी बहुत सारी रीजनिंग आगे भी होगी। तो अब हम चलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जो हमारी फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज है? देखिए प्लीज ध्यान देना, बहुत सिंपल चीज है, डेफिनेशन आपको आनी चाहिए इसकी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स कैन नॉट एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। प्लीज देखिए बेटा, मैंने वही डायग्राम दोबारा बनाया है। इसके अंदर मैंने 5% NaCl सोल्यूशन ले लिया, यहाँ पे वाटर ले लूँ या 2% ले लूँ NaCl सोल्यूशन, एक ही बात है। अब क्या होगा बेटा? अब आपको मैंने बताया था ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है SPM, यहाँ से वाटर अंदर को माइग्रेट करेगा या नहीं? नाउ वाटर विल माइग्रेट इनटू द Thistle funnel. Why? Because it consists of a concentrated solution by the process of osmosis. अब देखिए प्लीज समझने की कोशिश करना, अगर मैं यहाँ पे एक पिस्टन लगा दूं और इस पिस्टन को कंप्रेस करता जाऊं तो क्या होगा? मैं क्या कर रहा हूं? मैं इस जो ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वाटर इसके ऊपर, किसके ऊपर? SPM के ऊपर, सेमी परमिएबल, उसको अपोज करूंगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये प्रेशर और ये प्रेशर बराबर हो जाएगा, तो उस टाइम पे माइग्रेशन क्या होगी? बंद हो जाएगी। उस टाइम पे माइग्रेशन क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। वो जो प्रेशर मैंने लगाया है सॉल्यूशन साइड के ऊपर, उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, कान को यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो, वो प्रेशर किसके बराबर है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉल्वेंट ऑन द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हम इसको डिफाइन ऐसे नहीं करते, हालांकि ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या? जितना प्रेशर पानी उसके ऊपर लगाएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे, अगर मैं 5 की जगह पे 10 कर दूंगा तो पानी ज्यादा माइग्रेट करेगा, मुझे ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। जितनी मैं कंसंट्रेशन अंदर बढ़ाता जाऊंगा उतना ज्यादा माइग्रेशन होगी। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से डिफाइन ना करके कान को ऐसे पकड़ के डिफाइन करना है। इसको क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, द एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर बेटा? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन साइड। ये साथ साथ नोट्स लिखते रहना बेटा जो मैं बोल रहा हूं। द एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन साइड सो एज टू प्रिवेंट द माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू द सोल्यूशन साइड थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मेरी बात समझ लग गई? वो एक्सेस प्रेशर जो मैं लगाऊंगा कहाँ पे? सोल्यूशन की साइड पे, ताकि ये माइग्रेशन जो अंदर हो रही है वो बंद हो जाए, उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। हालांकि वो किसके बराबर होगा? कान में ऐसे पकड़ रहा हूं, वो किसके बराबर होगा? जो प्रेशर ये लिक्विड को प्रेशर बराबर हो गए तभी तो माइग्रेशन रुकेगी, जो इसके ऊपर लगा रहा। लेकिन हम डिफाइन यहां से नहीं, यहां से करेंगे। मेरी बात समझ लग गई? सो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर that must be applied on solution side so as to prevent the migration of solvent molecules into the solution through the semi-permeable membrane is called osmotic pressure. Excess hydrostatic pressure that must be applied on the solution side so as to prevent the migration of solvent molecules into the solution through the semi-permeable membrane is called the osmotic pressure.
अब आप बताएंगे, सिंपल सी बात है, लेमैन्स लैंग्वेज में पता है कि जितनी कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होगी उतना वाटर ज़्यादा माइग्रेट करेगा और उतना प्रेशर भी ज़्यादा। इसका मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन पे डिपेंड करेगा। इज दैट क्लियर? ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इट इज डिनोटेड बाय पाई, इट इज डिनोटेड बाय पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं। तो अब हम इसको ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम करने जा रहे हैं, प्लीज ध्यान दीजिए। Osmotic pressure is denoted by pi, and it has been experimentally observed that pi is equal to CRT, where C is the concentration in moles per liter, that is molarity। क्या है बेटा? अभी तक हमने किया था relative lowering vapor pressure मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट मोलालिटी पे डिपेंड करती है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी मोलालिटी पे, लेकिन ये पहली प्रॉपर्टी है जो वॉल्यूम रिलेटेड है मोलारिटी पे डिपेंड करेगी। सो पाई इज इक्वल टू CRT, और यहाँ पे पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू C इज द मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम। अगर ये ml में है तो into 1000 into R into T। here R is the gas constant 0.082। अगर पाई एटमॉस्फेयर में है तो इसे 0.082 लेंगे, और अगर पाई बार में है, अगर ये ATM में है तो ये 0.083, अगर ये बार में है तो आर लेंगे। T इज द टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। यहाँ पे सेंटीग्रेड यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे डिफरेंस नहीं, यहाँ पे केल्विन में चेंज करना ही होगा। हाउ डू यू चेंज सेंटीग्रेड इनटू केल्विन? बाय एडिंग 273 टू दिस। तो दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या होता है? WB अपॉन MB, WB अपॉन MB, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू 1000 इंटू R इंटू T। सो दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ हाउ इज ऑस्मोटिक प्रेशर ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? नाउ यू वेरी वेल नो दैट ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द मोलारिटी और द कंसंट्रेशन, and molarity depends upon the number of moles but not on the nature of the। कोई भी सल्यूट लोगे आप, कोई भी सल्यूट ले लो, यूरिया ले लो, ग्लूकोज ले लो, मोलारिटी सेम होगी अगर नंबर ऑफ मोल सेम होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑस्मोटिक प्रेशर भी नंबर ऑफ मोल्स पे सल्यूट पे डिपेंड करती है बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सल्यूट। दस ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द molarity or concentration of the solution, which further depends upon the number of moles of the solute but not on the nature of the solute. Thus osmotic pressure is a colligative property। इससे कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास, किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास आया था पाई इज इक्वल टू CRT और पाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू 1000 इंटू R इंटू T, और पाई इज इक्वल टू WB अपॉन MB। मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज MB, V इन ml इंटू 1000। अगर ये लीटर में दिया हुआ 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना, इंटू R इंटू T। MB को इधर ले आइए, what will be molar mass of solute? WB अपॉन पाई V, पाई इधर आ जाएगा, इंटू 1000 इंटू R इंटू T। ये मोलर मास का फॉर्मूला आ जाएगा बेटा। आपको इसको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे कंसंट्रेशन डालिए, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे मोलालिटी नहीं मोलारिटी डालनी है। क्या डालना है? मोलालिटी नहीं डालनी, मोलारिटी डालनी है। तो मोलारिटी से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे। इज दैट क्लियर? सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है? एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर that must be applied on the solution side so as to prevent the migration of solvent molecules into the solution through the semi-permeable membrane. Is that clear? Before starting with the numericals, we have to do a few things.
आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? Solutions having same osmotic pressure are called isotonic solutions. That means for such solution pi 1 is equal to pi 2. इन सोल्यूशन के पाई 1 पाई 2 के बराबर होगा। लेकिन पाई 1 क्या होता है? CRT, और पाई 2 क्या होता है? CRT। RT कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब कौन से सॉल्यूशंस होंगे आइसोटोनिक? जिनकी कंसंट्रेशन सेम होगी। सिंपल सी बात है। पाई इज इक्वल टू व्हाट? C इंटू आर इंटू टी। और वहां भी पाई क्या होगा? C इंटू आर और टी, तो दोनों क्या होंगे? गिवन टेम्परेचर पे आर भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कब बराबर होगा? जब C1 C2 के बराबर होगा। C1 विल बी इक्वल टू C2, कंसंट्रेशन सेम होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा। इज दैट क्लियर? दूसरा है hypertonic solution. A solution which has higher osmotic pressure than the other is called hypertonic solution. जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो हाइपरटॉनिक होगा। दैट मीन्स उसका पाई दूसरे के पाई से ज्यादा होगा। पाई कब ज्यादा होगा? जब उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। इसका मतलब जिस सॉल्यूशन की मोलारिटी ज्यादा होगी वो हाइपरटॉनिक होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन solution which has lower osmotic pressure than the other is called hypotonic. जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से कम होगा वो हाइपोटोनिक होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर कब कम होगा? जब उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। इसका मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन हाइपोटोनिक होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होगा। रिलेटिव टर्म्स है। एक सॉल्यूशन दूसरे के मुकाबले हाइपोटोनिक भी हो सकता है, हाइपोटोनिक भी। रिलेटिव टर्म्स है। आइसोटोनिक वो होगा जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा। इज दैट क्लियर? तो ये थे बेटा तीन तरह के सॉल्यूशंस। तो अगली बार हम ह्यूमन ब्लड की बात करेंगे, प्लाज्मोलिसिस की बात करेंगे, इंट्रावीनस इंजेक्शंस की बात करेंगे, हाइपरटेंशन की बात करेंगे और उसके साथ ही ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल्स करके इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में रह जाएगा वांट ऑफ फैक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। वांट ऑफ फैक्टर की कंपटीशंस के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वांट ऑफ फैक्टर्स करने के बाद फिर हम हेनरीज लॉ करेंगे। मैक्सिमम 2 क्लासेस मैं इस चैप्टर पे और लगाऊंगा। 2 क्लासेस लगने के बाद तब तक आप पिछली जो 8th लेक्चर है 8 के 8 लेक्चर आप एक बार सुन लीजिए। प्लीज लिसन टू द और व्यू द वीडियोज। सम ऑफ यू आर नॉट व्यूइंग। देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव नॉट इवन पुट अप अ सिंगल प्रॉब्लम टू मी टिल नाउ। Please put in the problems through WhatsApp. Do the NCERT questions. Send me the NCERT questions so that they can be solved in the next class. Is that clear? In some schools they have started organic. As soon as the lockdown opens, there will be one batch for organic classes also. Simultaneously organic भी शुरू करेंगे। लेकिन इसके बाद हम चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करेंगे। ठीक है? So because solid state is not a chapter that can be done in this class. Because that requires a bit of understanding to a larger extent. डायग्राम बेस्ड चैप्टर है इसलिए उसको हम ऑफलाइन क्लास में ही करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रो इज अ वेरी टफ चैप्टर बट a very important chapter also. Is that clear? I hope you are studying. Please do the questions from the assignment, the NCERT questions. I'll be happy if you send me the questions so that they can be solved in the next class. From Friday onwards, probably we will be starting with the privatization of this channel. Videos will not be visible to everybody. You will be sent the link through or the video through an app. Only you can see it. You cannot forward it. You cannot copy paste it. You cannot save it. So you cannot send it to anybody else. Is that clear? तो वो वीडियो आपके पास रहेगी। वीडियो रहने से आपकी रिवीजन भी होगी। जब आपको कोई पार्ट चैप्टर का पढ़ना है वीडियो लगाइए, लिंक्स आपके पास होंगे, वीडियो देखिए और उसके बाद आप उसके नोट्स कॉपी करें। जो पहले की वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे रहेंगी, लेकिन ये वीडियोस आपके पास ऐप में होंगी। आप ऐप में देख के नेक्स्ट जो आगे वीडियोस आएंगी ऐप में देखिए, रिवाइज करिए और क्वेश्चंस पुट अप करिए। थैंक यू वेरी मच।